اسلام دین ہے جیسس کا اور عیسائیت جیسس کی شخصیت پر مبنی دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سے کبھی نہیں ملے، وہ ان سے 600 سال پہلے آئی تھی۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ان کے نام سے آیا ہے؟ نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ نیک کہا گیا ہے۔ میرے کلیکشن میں 300 بائبلز ہیں جو کہ مختلف زمانوں میں سے ہیں، مختلف زبانوں میں اور مختلف ورژنز میں ہیں، اور ان میں سے ہر ایک دوسری سے مختلف ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دوبارہ تشریف لائیں گے جیسس۔ انہیں نہ قتل کیا گیا تھا نہ ہی سولی چڑھایا گیا تھا۔ جیسس علیہ السلام ایک توحید پرست انسان تھے۔ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، کبھی سور نہیں کھایا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی بھی خون استعمال کیا، کیونکہ وہ مذہب کے سچے پیروکار مسلمان اور ایک پیغمبر تھے۔ تو اگر آپ جیسس سے محبت کرتے ہیں لہٰذا آپ ان کے دین کو فالو کریں، اور جیسس کا دین تھا اسلام۔ السلام علیکم ڈاکٹر سبیل احمد، یہاں تشریف لانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے عیسائیت کے بارے میں کچھ سوالات اکٹھے کیے ہیں جو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل پوچھیے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب آپ اسلام کے نقطۂ نظر سے میری یعنی کہ مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کو کیسے ری ایکشنز ملتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام اور عیسائیت کے درمیان کون سی باتیں یکساں اور مختلف ہیں؟ میری علیہ السلام کے حوالے سے میں ایک لفظ میں آپ کو جواب دوں گا، اور وہ لفظ ہے میری۔ اوکے، MARY، یعنی ایم کا مطلب ہے مینشن کیا گیا انہیں قرآن میں۔ یہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ ایک دفعہ میری ایک فلائٹ تھی جو شکاگو سے ہیوسٹن کی تھی۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھا تھا اور میرے برابر میں 2 خواتین بیٹھی ہوئی تھیں جو کہ کیتھولک فرقے سے تھیں۔ ان کے ساتھ کوئز کھیلا میں نے اسلام اور عیسائیت کے درمیان، ایک دعوتی کوئز جہاز میں۔ میں نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ میری بہنوں بتاؤ مجھے وہ کون سی واحد خاتون ہیں جن کا ذکر ان کے نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے۔ کہنے لگی ہمیں جواب معلوم ہے، وہ میری ہیں، جیسس کی والدہ۔ میں نے کہا بہت خوب۔ پھر میں نے ان سے ایک اور سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ ان کا ذکر قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں معلوم۔ میں نے کہا 34 مرتبہ۔ پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بائبل میں ان کا ذکر کتنی مرتبہ آیا ہے۔ کہنے لگی ظاہر ہے ہمیں یہ بھی نہیں معلوم۔ میں نے کہا ان کا ذکر 18 مرتبہ آیا ہے، لہٰذا اگر آپ موازنہ کریں تو قرآن میں 34 مرتبہ اور بائبل میں 18 مرتبہ ذکر آیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگیں۔ تو ایم سے مراد ہے کہ قرآن میں ذکر ہونے والی واحد خاتون۔ ایم کا مطلب یہ بھی ہے ان کے نام سے پورا چیپٹر بھی قرآن میں موجود ہے، چیپٹر نمبر 19۔ یہاں ایم واضح ہو گیا میری کا۔ اب دوسرا حرف ہے اے سے مراد ہے اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے خلوص۔ اللہ ان کی زندگی کا مقصد تھا، ان کی حیا، ان کی پاک دامنی، ان کا اللہ کے لیے خلوص۔ قرآن میں کئی بار اس بات کا ذکر ہے۔ اب آر کا مطلب ہے ریسپیکٹ، یعنی وہ عزت جو میری علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ ایک چیپٹر ہے قرآن میں، چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 42، جس میں فرشتہ میری کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے ان سے کہ میری خدا نے آپ کو چن لیا ہے اور پاک بنا دیا ہے، اور خدا نے آپ کو تمام عورتوں سے بلند مقام دے دیا۔ دیکھیں یہ ہے وہ عزت جو اللہ نے میری کو دی تھی۔ تو میں اپنے عیسائی دوستوں سے یہی کہتا ہوں کہ جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری سے کبھی نہیں ملے، وہ ان سے 600 سال پہلے آئی تھی۔ تو یہ کیسے ہوا کہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا ذکر قرآن میں ان کے نام کے ساتھ آیا ہے؟ نہ صرف ان کا نام آیا ہے بلکہ انہیں ہمیشہ کے لیے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ نیک کہا گیا ہے، اور یہ درجہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ، بیوی اور بیٹی کو بھی نہیں دیا گیا، لیکن یہ ایک یہودی عورت کو دیا گیا جس سے نبی پاک کبھی نہیں ملے۔ اور یہ ایک اشارہ ہے جو میں عیسائیوں سے کہتا ہوں کہ قرآن نبی پاک کے اپنے ذہن کا بنایا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ انسانوں کے پیدا کرنے والے کی طرف سے ہے۔ تو MAR اور Y، ہاں اب Y رہ گیا۔ Y سے مراد ہے کہ وہ ینگ تھیں اور وہ کنواری بھی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے جیسس کو جنم دیا۔ تو یہ ہے اسلام میں میری کا درجہ۔ تو عیسائیت کیا کہتی ہے؟ کیا اسلام اور عیسائیت میں کوئی اور اختلافات ہیں؟ جی بالکل، اگر اختلافات کی بات ہو تو میں کہوں گا کہ سب سے بڑا اختلاف یہ ہوگا کہ قرآن میں میری کا ذکر ایک رتبے، عزت، احترام، رحمت و برکت کے ساتھ کیا گیا ہے، مگر بائبل میں ان کا ذکر بس عام عورت کی طرح کیا گیا ہے، دوسری ماؤں کی طرح، بس ایک ماں، کوئی خاص بات نہیں۔ کچھ جگہوں پر بے ترتیب انداز میں ان کا ذکر آیا ہے، بس کچھ شاگردوں اور جیسس کے ساتھ ان کی ملاقاتوں کا ذکر ہے، مگر وہ شان و شوکت والا رتبہ نہیں جس طرح اسلام نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن میں۔ البتہ دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ وہ کنواری تھیں، وہ جوان تھیں اور غیر شادی شدہ بھی تھیں جب اللہ نے معجزہ عطا فرمایا اور انہوں نے جیسس علیہ السلام کو جنم دیا۔ اچھا، بائبل میں نبی پاک کے بارے میں کیا ذکر آیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مسلمان علماء کے مطابق اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں آیا ہے۔
दर हकीकत कुरान खुद चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 157 में बताता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र उनके सहीफों में मौजूद है, यानी यहूदी और ईसाइयों के सहीफों में। हम देखते हैं कि ओल्ड टेस्टामेंट की किताब डिट्रोनोमी के चैप्टर 18 वर्स नंबर 18 में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम से कुछ यूं फरमाते हैं कि एक दिन दुनिया में एक पैगंबर आएगा मूसा के बाद, और वो पैगंबर बिल्कुल मूसा की ही तरह होगा। वो पैगंबर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ सुनेगा बस वो ही बयान करेगा। मुसलमान उल्मा कहते हैं कि वो वाहिद पैगंबर जो काफी हद तक मूसा अलैहिस्सलाम ही की तरह थे, वो हमारे नबी पाक थे। ये थी पहली बात। दूसरी बात, एक पेशगोई भी की गई थी आइजिया की एक किताब चैप्टर 29 वर्स नंबर 12 में, जिसमें एक फरिश्ता एक शख्स के पास आता है और आकर कहता है कि पढ़ो, और वो शख्स कहता है कि मैं नहीं पढ़ सकता। और बिल्कुल ऐसा नबी पाक के साथ भी हुआ था, जब फरिश्ते जिब्राइल उनके पास आए और उन्होंने नबी पाक से पढ़ने की दरखास्त की। और सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन की किताब के चैप्टर 5 वर्स नंबर 16 में मोहम्मद का लफ्ज मौजूद है ना? अलबत्ता वहाँ मोहम्मद का लफ्ज इब्रानी जुबान में है। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट है। जब न्यू टेस्टामेंट की बात हो तो मुसलमान उल्मा कहते हैं इसमें बहुत ज्यादा पेशगोइयां हैं। यहूदियों को देखें, वो एक पैगंबर की आमद के मुंतज़िर हैं, जैसा कि हजरत मूसा ने कहा कि मेरे बाद एक पैगंबर आएगा, राइट, जो मेरी तरह ही होगा। लिहाजा जीसस के जमाने में ईसाई भी उस पैगंबर का इंतजार कर रहे थे। तो वो जॉन द बैप्टिस्ट से पूछते हैं क्या तुम ही वो पैगंबर हो? तो वो उन्हें कहता है कि नहीं। तो फिर वो पैगंबर जीसस के मुताबिक गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में उन्होंने कहा है कि तुम्हारे लिए, मतलब मेरे शागिर्दों के लिए ये जरूरी है कि मैं उनसे बहुत दूर चला जाऊं, और अगर मैं नहीं गया तो तसल्ली देने वाला नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला जाऊं तो वो जरूर भेजा जाएगा। फिर जीसस ने कहा मैंने तुम्हें बहुत सी बातें कहनी है, मगर तुम उन्हें अभी नहीं सुन सकते, मगर जब वो आ जाएगा तो वो तुम्हें पूरा सच दिखाएगा। वो अपने पास से कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा बस वो ही बयान करेगा। तो यहाँ मुअन्नस ज़मीर इस्तेमाल नहीं हुई, बल्कि रूहुल कुद्स के लिए मुज़क्कर ज़मीर का इस्तेमाल हुआ है। और जीसस फरमा रहे हैं कि वो पूरा सच लेकर आएगा, वो ईमान को मुकम्मल करेगा, मुकम्मल रहनुमाई देगा। तो मुसलमान कहते हैं कि वो मुकम्मल रहनुमाई अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दी है। लिहाजा ये मुख्तसरन चंद पेशगोइयां हैं। जब आप ईसाइयों को ये मिसालें देते हैं तो वो आपको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं और कैसा रिएक्ट करते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या वाकई? हाँ, मगर सब लोग नहीं, कुछ लोग मुखालफत भी करते हैं। पता है वो क्या कहते हैं? जो पेशगोइयां तुमने हमें बताई, खास तौर पर जो न्यू टेस्टामेंट में है, उनका ताल्लुक रूहुल कुद्स से है, यानी कि द होली गोस्ट। इनका ताल्लुक तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं है। हम इस पर उनसे ये कहते हैं कि देखो, जीसस कह रहे हैं कि उस शख्स के लिए उन्हें जाना होगा ताकि वो शख्स भेजे जाएं। लेकिन अगर रूहुल कुद्स को देखें तो वो तो जीसस के जमाने में भी मौजूद थे। लिहाजा ये बात गैर माकूल लगती है। जीसस कह रहे हैं कि मुझे जाना होगा उस शख्स के आने के लिए, लेकिन अगर वो रूहुल कुद्स हैं तो वो तो पहले से ही मौजूद थे, वो रूहुल कुद्स नहीं है। और दूसरा तरीका जिससे हम ईसाइयों पर नुक्ताचीनी कर सकते हैं वो ये है कि जीसस तो कह रहे हैं कि वो शख्स आपको पूरी सच्चाई बताएगा, मुकम्मल रहनुमाई देगा। रूहुल कुद्स या होली गोस्ट ने ऐसा नहीं किया। तीसरी बात हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 7 मरतबा मुज़क्कर ज़मीर इस्तेमाल की है इन वर्सेस में कि वो आएगा, वो मेरी शान बढ़ाएगा, वो पूरा सच दिखाएगा, राइट। होली स्पिरिट के लिए इट इस्तेमाल होगा, उसमें ही या शी इस्तेमाल नहीं होगा। एक और बात हम ये कह सकते हैं कि इस पैराग्राफ में जीसस कह रहे हैं कि वो अपने पास से कुछ भी नहीं कहेगा, जो वो सुनेगा वही बयान करेगा। ईसाइयों के मुताबिक रूहुल कुद्स खुदा है। खुदा तो इंतजार नहीं करता कि कोई उससे कुछ कहे तो वो बोले कि क्या कहना है क्या नहीं। लिहाजा ये रूहुल कुद्स नहीं बल्कि कोई और शख्स है, और हम कहते हैं कि वो वाहिद शख्स इस तफसील पर पूरे उतरते हैं, वो हमारे नबी पाक हैं। एक बात जिस पर ईसाइयों को बहुत तजस्सुस है कि जीसस का इस्लाम में क्या रुतबा है, और ये भी कि मुस्लिम्स भी जीसस पर ईमान रखते हैं। क्या इस हवाले से कोई वाकया है? जीसस का इस्लाम में और ईसाइयत में क्या मुकाम है? ठीक है, मैं बताता हूँ। एक बार हमने बिलबोर्ड लगाया शिकागो हाईवे पर, जिस पर लिखा था कि जीसस को कुरान में तलाश करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाइबल में। लोगों में तजस्सुस पैदा हो गया कि आप जीसस को कुरान में कैसे देख सकते हैं, और ये भी कि नबी पाक बाइबल में कहाँ है। बहुत से लोगों ने सवालात पूछने के लिए कॉल की और कुछ ने डिबेट के लिए, मगर बहुत से लोगों ने कुरान का एक नुस्खा लेने के लिए भी कॉल की। लिहाजा अगर कोई मुझसे हजरत ईसा का इस्लाम में मकाम पूछता है तो मैं उन्हें सादा सा एक लफ्ज में जवाब देता हूँ। एक लफ्ज का जवाब, मैं एक लफ्ज का जवाब कह रहा हूँ, ओके? वो है जीसस, JESUS। जीसस का ये लफ्ज हमें हर हुर्फ में ये मौका देता है कि हम ईसाइयों को जीसस का इस्लाम में मकाम बता सकें। तो जीसस में जे का मतलब है जस्ट अ मैसेंजर। क्या ये आसान हो गया? यानी जे का मतलब वो पैगाम पहुंचाने वाले थे,
تو قرآن کے چیپٹر 5 ورس نمبر 75 میں ہے کہ جیزس صرف ایک پیغام پہنچانے والے تھے. ان سے پہلے بہت سے پیغام پہنچانے والے گزر چکے ہیں. تو قرآن کے مطابق کہ جیزس پیغمبروں کے سلسلے کے ایک رسول تھے. ہر رسول اور پیغمبر لوگوں کو صرف ایک خدا کی عبادت کروانے کے لیے آئے. لہٰذا جیزس ایک پیغمبر تھے. ای کا مطلب ایمپاورڈ، یعنی خدا کی طرف سے معجزوں کی طاقت رکھنے والا. مردوں کو زندہ کر دینا یا پھر کسی نابینا کو بینائی دے دینا، بیمار کو شفا دے دینا. ان کے پاس معجزے تھے اور معجزے دکھانے کی طاقت اللہ نے ہی دی تھی. یہ سب کہاں لکھا ہے؟ قرآن کی سورہ نمبر 3 ورس نمبر 49 میں. مگر ہم عیسائی دوستوں کے ساتھ جو مزے کی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وہ معجزے جو جیزس علیہ السلام کی طرف سے دیکھے گئے اس کی طاقت انہیں خدا نے دی تھی. یعنی کہ وہ طاقت خالق کائنات کی طرف سے تھی، ان کی ذاتی نہیں تھی. تو یہ تھا ای. جے ای. ایس کا مطلب ہے جیزس کا سول مشن. ان کا واحد مشن انسانیت کو ایک خدا کی عبادت پر لانا تھا. قرآن کے چیپٹر 3 ورس نمبر 51 میں ہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم. یعنی اللہ قرآن میں جیزس کی بات دہرا رہے ہیں اور جیزس کہہ رہے ہیں کہ بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا رب ہے، صرف اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے. لہٰذا ایس کا مطلب جیزس کا سول مشن ہے. تو جے ای ایس یو بہت انٹرسٹنگ ہے نا؟ آپ کے خیال میں یو کا مطلب کیا ہوگا؟ یو کا مطلب ہے اپ لفٹڈ بائی اللہ. نہ وہ قتل ہوئے نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے، بلکہ اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. وہ آسمان پر سولی چڑھے بغیر موجود ہے، رائٹ؟ جے ای ایس یو. اور آخری ایس کا مطلب ہے سیکنڈ کمنگ. عیسائی سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کیا واقعی ہم ان کا دوبارہ آنا مانتے ہیں؟ تو یہ وہ طریقے ہیں جس سے میں اسلام کو سمجھاتا ہوں. یہ یاد کرنا بھی آسان ہے اور ترتیب سے بھی ہے، جس کا اختتام دوسری بار آنے پر ہوتا ہے. تو اسلام میں جیزس کا یہ مقام ہے. انہیں نہ تو سولی پہ چڑھایا گیا نہ قتل کیا گیا، بلکہ آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا. ہاں، قرآن کے مطابق سورت نمبر 4 سورہ نساء ورس نمبر 157 میں اللہ فرما رہا ہے، میں ترجمہ بتا رہا ہوں، کہ یہ لوگ فخر سے کہتے ہیں کہ انہوں نے میری کے بیٹے جیزس مسیح کو قتل کر دیا، لیکن انہوں نے قتل نہیں کیا، نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بس معاملہ ان پر ایسا ظاہر کیا گیا. اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ جیزس کو میں نے اٹھا لیا تھا، نہ سولی پر چڑھایا گیا نہ ہی قتل کیا گیا. تو یہ بھی ایک اختلافی بات ہے، مگر جیزس کے بارے میں اللہ نے یہی کہا ہے. تو انہیں قتل کیوں نہیں کیا گیا اور آسمانوں پہ کیوں اٹھا لیا گیا؟ کیا اس وجہ سے وہ دوبارہ آئیں گے؟ ہاں، تو اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ دوبارہ تشریف لائیں گے جیزس. انہیں قتل نہیں کیا گیا نہ ہی سولی پر چڑھایا گیا، کیونکہ عیسائی علماء کے مطابق ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جیزس کی صلیب پر موت کا مطلب ہے عیسائیوں کے لیے نجات. لہٰذا ہم یہ یقین نہیں رکھتے کہ کسی شخص کی موت یا زندگی نجات کا ذریعہ ہو سکتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، لیکن اگر فرض بھی کر لیں کہ وہ مر گئے تو بھی اس سے نجات نہیں ہو سکتی. مگر حقیقت میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ نے جیزس کو خود اوپر اٹھا لیا تھا. انہیں دنیا میں واپس بھیجا جائے گا، اور پھر دوسری بار جب وہ دنیا میں بھیجے جائیں گے تو کچھ چیزیں ترتیب سے ہوں گی. تو ہمیں یہ بتائیں، جب وہ آئیں گے تو کیا کچھ ہوگا؟ کیا وہ بطور رسول آئیں گے؟ جب جیزس دوبارہ آئیں گے، اور ظاہر ہے کسی کو بھی اس وقت کا علم نہیں ہے کہ وہ کس وقت، کس دن یا پھر کس سال آئیں گے دوبارہ. مگر امام بخاری، امام مسلم کی کلیکشن میں ایسی بہت سی مستند روایات ہیں جو دراصل حدیث ہیں، یعنی نبی پاک کی کہی گئی باتیں ہیں جنہیں شروع کے مسلمانوں نے جمع کر لیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریباً 14 مستند روایات ہیں جو جیزس علیہ السلام کی دوسری مرتبہ آمد کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہیں، رائٹ؟ تو وہ دمشق کے شہر میں تشریف لائیں گے اور وہ فجر کی نماز کا وقت ہوگا. مسلم دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ دن کی پہلی نماز ہوتی ہے. اس وقت وہ آسمان سے اتر رہے ہوں گے. وہ دمشق کے مشرقی جانب ایک سفید مسجد کے مینار پر اتریں گے. وہ نیچے آئیں گے اور وہ وقت مسلمانوں کی نماز کا ہوگا، اور مسلمان انہیں دیکھ کر بالکل حیران رہ جائیں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ خوش آمدید جیزس، ہم آپ کے منتظر تھے. اور ان سے یہ بھی کہیں گے کہ کیوں نہ آپ ہی ہمیں نماز پڑھائیں. اور پھر جیزس کہیں گے کہ یہ جو آپ کا امام یہاں موجود ہے وہی نماز پڑھائے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ جیزس ایک پیغمبر یا نئے رسول کے طور پر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے فالوور کی حیثیت سے آئیں گے. اور پھر مزید تفصیل ہے کہ کیا کچھ ہوگا. ان کی اپنی پوری فوج ہوگی جو اینٹی کرائسٹ یعنی دجال سے لڑے گی. خدا کی طاقت سے اینٹی کرائسٹ کو شکست ہوگی. پھر جیزس پوری دنیا پر حکومت کریں گے کچھ سالوں کے لیے. اس وقت ہر کوئی مسلمان ہوگا. مسلم کا مطلب ہر وہ شخص جو اللہ کے آگے جھکتا ہے. جیزس شادی کریں گے اور پھر وہ چلے جائیں گے پلگرمج کے لیے یعنی حج کرنے مکہ میں. پھر آخر میں ان کی قدرتی طور پر وفات ہو جائے گی. آخرت کی زندگی کا اسلامی عقیدہ عیسائیت سے کیسے مختلف ہے؟ جنت، جہنم، روز جزا اور سزا وغیرہ.
अच्छा सवाल है। निजात का तस्वुर और आखिरत का तस्वुर, बहुत सी बातें एक जैसी हैं मगर इनमें बहुत ज्यादा इख्तलाफात भी हैं। एक जैसी बातों में एक तो ये है, ईसाइयों के मुताबिक दोबारा जिंदा किए जाने का एक दिन आएगा और एक दिन फैसले का आएगा, मगर फैसले के दिन ऐसा नहीं होगा कि खुदा के बजाय जीसस लोगों से उनका हिसाब ले रहे होंगे। मगर इस्लाम के मुताबिक अल्लाह अलीम है, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है, वो बड़ी हिकमत वाला है, उसे हर चीज का पूरा इल्म है। इसलिए वही वाहिद हस्ती है जो इंसानियत का हिसाब लेने के लिए मौजू है, ना कि जीसस। क्योंकि जीसस के पास इतना इल्म नहीं है, वो पैगंबर थे, इंसान थे, उन्हें हर चीज का इल्म नहीं है। तो ये बड़े इख्तलाफात में से एक है। और दूसरा बड़ा इख्तलाफ जन्नतुल फिरदौस की तफसील में है, जो कि कुरान और बाइबल में मुख्तलिफ है। बाइबल में इसके बारे में तफसील से नहीं लिखा गया है जन्नत के मुतालिक, लेकिन कुरान में पूरी तफसील के साथ मौजूद है। इसमें तफसील से बयान किया गया है, जैसे महलात, कपड़ों, दरख्त और लोगों के और उनकी आपस की बातचीत के बारे में। ठीक, इसमें बयान किया गया है तमाम शानदार इनामात और हमारी बीवी और फैमिलीज के बारे में। मगर बाइबल में सिर्फ एक चीज बयान की गई है कि जन्नत में जन्नतियों का खुदा से बराह रास्त राब्ता होगा। मगर इससे दिल में बहुत सारे सवालात पैदा हो जाते हैं। उस हमेशा की जिंदगी में इसके क्या मायने हैं? कि आप बस बैठे होंगे, वहाँ पर खुदा होगा और आप क्या कर रहे होंगे? कुरान इसका तसल्ली बख्श जवाब देता है हमें कि वहाँ क्या होगा। सारे इनामात तफसील से बताता है, राइट? तो ये एक फर्क है। दूसरा बड़ा फर्क है जहन्नुम का तस्वुर। कुछ ईसाई इसे हकीकी जहन्नुम मुराद लेते हैं कि वहाँ सजा और अजियत होगी, मगर ज्यादातर ईसाई ये कहते हैं कि जहन्नुम दरअसल जुदाई की जगह होगी, जहाँ पर खालिक और मखलूक अलग होंगे। लिहाजा वो जुदाई लोगों में बेबसी, मायूसी के साथ साथ बेबसी भी पैदा करेगी। मगर जहन्नुम का इस्लामी तस्वुर ये है कि ये ऐसे लोगों के लिए सजा की एक जगह होगी जो खुदा को नहीं मानते थे। कई निशानियां और कई वार्निंग्स उनके पास आने के बावजूद उन्होंने खुदा का इनकार किया और गलत काम किए। उन्होंने शिर्क किया, राइट? उन्होंने अपने रब के बजाय किसी और की इबादत की, या फिर इबादत में रब के साथ किसी और को शरीक कर लिया। तो जहन्नुम की इस जगह को कुरान में तफसील के साथ बयान किया गया है। अल्लाह हम सबको जहन्नुम की आग से बचाए और हमें जन्नत में दाखिल फरमाए। तो क्या ईसाई ये अकीदा रखते हैं कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे? देखिए, जिस तरह ईसाइयों के अकायद होते हैं, इस तरह मुसलमानों के 6 बुनियादी अकायद, 5 अरकान और दीगर फराइज होते हैं। अगर कोई शख्स इस्लामी अकायद से मुत्तफिक नहीं होता और उन पर अमल नहीं करता, तो फिर शायद उस शख्स को सजा मिल सकती है। या फिर कोई शख्स इस दुनिया में रहते हुए इस्लाम पर ईमान ना लाए, जबकि उसे वार्निंग्स और इल्म मिल रहा हो। तो पता है हम क्या कहते हैं कि यही वो मयार है जो उस शख्स को जहन्नुम में ले जाएगा। और ईसाइयों के मुताबिक अगर कोई भी शख्स ये नहीं मानता कि जीसस खुदा है, खुदा के बेटे या ट्रिनिटी का हिस्सा है, या उन्होंने इंसानियत की निजात के लिए अपनी जान नहीं दी, अगर कोई शख्स जीसस के इस तस्वुर को नहीं मानता, तो वो शख्स जहन्नुम की आग में जाएगा। लिहाजा वो कहते हैं कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे अगर वो जीसस पर ईमान नहीं लाते या जो उनका मकसद नहीं मानते। तो हाँ, वो ये कहते हैं कि मुसलमान जहन्नुम में जाएंगे अगर उन्होंने जीसस को रब या निजात दहिंदा नहीं माना। मगर खुद बाइबल से ही हम उन्हें बता सकते हैं कि जो कुछ वो कह रहे हैं वो जीसस के मुताबिक कही हुई बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये अहम तरीन पॉइंट्स में से एक है, क्योंकि जीसस के मुताबिक तो निजात का रास्ता ये है कि इंसान सही अकीदा रखे और अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल करे। इस्लाम भी यही कहता है। कुरान के चैप्टर 2 वर्स नंबर 25 में अल्लाह फरमा रहा है, जिसका तर्जुमा है कि जो लोग ईमान लाए हैं और नेक अमाल किए हैं उन्हें खुशखबरी दे दो कि उनके लिए ऐसे बागात तैयार हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। तो एक शख्स जीसस के पास आया, ये बाइबल में लिखा हुआ है, और उसने जीसस के पास आकर अर्ज की। उस शख्स का सवाल बहुत ही आम और बुनियादी था। ये न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, जो पहली गॉस्पल थी, जो कि है गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 19 वर्स 16 और उससे आगे तक है। एक शख्स जीसस के पास आया और उनसे एक सवाल पूछा कि ए अच्छे आका, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं जन्नत में जा सकूं? यहाँ डायरेक्ट जवाब बनता है। तो जीसस ने जवाब दिया कि तुम मुझे अच्छा क्यों कह रहे हो? सिवाय खुदा के कोई भी अच्छा नहीं है। तो जीसस खुदा नहीं हो सकते इस बात के मुताबिक, क्योंकि जीसस ने खुद कहा कि खुदा कोई और हस्ती है जो मुकम्मल अच्छाई रखता है, मैं अच्छा नहीं हूँ। फिर उन्होंने सवाल का जवाब दिया। जीसस ने कहा, अगर तुम्हें हमेशा की जिंदगी चाहिए और तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो अहकामात पर अमल करो। जीसस को तो ये कहना चाहिए था कि तुम बस कुछ दिन इंतजार करो, कुछ हफ्ते और कुछ महीने, मैं मरने वाला हूँ, वो लोग मुझे सलीब पर लटकाएंगे, यकीन कर लेना मैं मर चुका हूँ, फिर मैं दोबारा जिंदा होऊंगा और यही जन्नत का रास्ता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ये नजरिया तो लोगों ने बाद में बना लिया कि जीसस ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो अहकामात पर अमल करो। तो फिर उस शख्स ने पूछा कि कौन से अहकामात? जीसस ने उस शख्स को कहा कि ओल्ड के अहकामात, मतलब ओल्ड टेस्टामेंट के। उनका इशारा 10 अहकामात की तरफ था, और वो 10 अहकामात ओल्ड टेस्टामेंट में एक्सोडस की किताब में चैप्टर 20 वर्स 3 में मौजूद हैं कि सिर्फ एक खुदा को मानो और उसकी इबादत करो, और बाकी के 9 अहकामात अच्छे काम के बारे में है।
खुदा के नाम की तौहीन ना करो, अपने वालिदैन का एहतराम करो, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करो, झूठ मत बोलो, धोखा मत दो, कत्ल मत करो, बस अच्छे अमाल करो। तो जब आप 10 अहकामात देखते हैं तो पहला हुक्म है कि एक खुदा पर ईमान लाओ, बाकी अहकामात का ताल्लुक अच्छे अमाल करने से है। तो जीसस अलैहिस्सलाम के मुताबिक यानी बाइबल भी यही कहती है कि किसी भी शख्स को जन्नत में जाने के लिए सही अकीदे के साथ अच्छे अमाल करने होंगे। ईसाइयत के मुताबिक जीसस ने इंसानियत की निजात और उनके गुनाहों की मुआफी के लिए अपनी कुर्बानी दी। क्या यह अकीदा गलत है? जीसस को अपनी निजात के लिए निजात दहिंदा के तौर पर कबूल क्यों नहीं करना चाहिए? देखें, ये वैसे बहुत से पहलुओं से गलत है, क्योंकि ये लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है कि क्यों जीसस की मौत पूरी इंसानियत को निजात दिला देगी। मैं गाड़ी चलाकर अपने घर से यहाँ पर आया हूँ। देखिए, अगर मैं स्पीड लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी चलाता हूँ तो फिर मैं ही वो शख्स होगा जिसे पुलिस पकड़ेगी और मुझे ही उसका हर्जाना भरना होगा, उसका टिकट भरना होगा, ना कि मेरी बीवी, मेरे पड़ोसी या मेरे वालिदैन भरेंगे। तो लॉजिकली अगर कोई शख्स मर जाए तो उस शख्स की मौत पर ईमान लाकर दूसरे शख्स को निजात कैसे मिल सकती है? इस्लाम के मुताबिक और लॉजिक के मुताबिक इस्लाम ये कहता है कि जैसा करोगे वैसा ही पाओगे, यानी अगर अच्छे अमाल करोगे तो अच्छा इनाम मिलेगा, अगर बुरा करोगे तो तौबा करने पर मुआफी मिल जाएगी, वरना उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इस्लाम में निजात का तसव्वुर अक्ली और समझ में आने वाला है। दुनिया के हर अदालती निजाम में वो अपनाते हैं एहतसाब का तसव्वुर जो इस्लाम के मुताबिक है। जो तुम करोगे, अगर कोई मुजरिम कोई जुर्म करेगा तो उसे ही सजा दी जाएगी, किसी और को बिल्कुल नहीं। लिहाजा अक्ली नुक्ता नजर से ईसाइयों का निजात का तसव्वुर निहायत गैर माकूल है। और रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसा कि मैंने पहले बताया, जीसस ने कहा कि निजात का रास्ता, जन्नत में जाने का रास्ता अच्छा और सही अकीदा रखना और अच्छे आमाल करना, जो कि मैथ्यू में चैप्टर 19 वर्स नंबर 16 से लेकर आगे तक है। तो हम जिस जाविये से भी देखें, यहाँ तक कि ओल्ड टेस्टामेंट में भी यही है, राइट? ओल्ड टेस्टामेंट भी यही कहता है कि जैसा तुम करोगे वैसा ही पाओगे। इज़िकियल की किताब में भी दर्ज है। तो ओल्ड टेस्टामेंट में है कि जीसस ने कहा है जो कुरान भी कहता है, अक्ल कहती है और हर अदालती निजाम भी कहता है कि जिसने गलत किया है सजा भी उसे ही मिलनी चाहिए और जिसने अच्छा काम किया है इनाम भी उसे ही मिलना चाहिए। तो इसीलिए असली गुनाह का तस्वुर गैर माकूल है, ऐसा ही है ना? देखें, असली गुनाह के मुताबिक आदम और हव्वा ने एक ऐसा काम किया था जिससे अल्लाह की नाफरमानी हुई। उन्होंने सेब खा लिया था और उस दरख्त के पास गए थे और उसकी सजा ये मिली कि आदम और हव्वा की नस्ल से आने वाली हर औलाद और हर बच्चा इसी असली गुनाह का बोझ लेकर पैदा होंगे। मगर अक्ली नुक्ता नजर से देखे तो मुझे उसकी सजा क्यों मिलेगी जो गुनाह मेरे वालिदैन ने किया था? कोई भी अदालती निजाम इस तस्वुर को नहीं मानता कि बच्चों को सजा दी जाए वालिदैन के गुनाह की। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? इस्लाम इसे असली गुनाह नहीं मानता, बल्कि इस्लाम असली अच्छाई की बात करता है कि पैदा होने वाला हर बच्चा, हर औलाद एक पाक और साफ दिल लेकर पैदा होती है, एक साफ तख्ती की तरह, बिल्कुल मासूम, पाक, किसी दाग के बगैर, तब तक जब तक आप बालिग हो जाते हैं। और फिर अगर आप अच्छा काम करते हैं तो इनाम दिया जाएगा और अगर बुरा काम करते हैं तो उसकी सजा मिलेगी। लिहाजा इस्लामी तस्वुर के मुताबिक जब आदम और हव्वा से ये गुनाह हुआ था, जब उनसे वो गलती हुई थी, तो दोनों ने खुदा से तौबा की कि ऐ खुदा प्लीज हमें माफ कर दो, और खुदा ने माफ कर दिया, बात खत्म हो गई। इसलिए हर बच्चा एक असली अच्छाई के साथ पैदा होता है। मैंने कई मौकों पर बारहा ये जवाब दिया है। मस्जिद के ओपन हाउसेज में ईसाई हजरात जब ये सवाल करते थे तो वो हर बार यही कहते हैं कि सबील, आपने निजात के इस्लामी तस्वुर के बारे में जो बात कही वो बिल्कुल लॉजिकल है और हमें समझ में आती है। तो ईसाई पूछते हैं कि फिर खुदा ने बाइबल को महफूज क्यों नहीं रखा? तो क्यों हिफाजत नहीं की अल्लाह ने? इंजील की जो जीसस को दी गई, ज़बूर जो डेविड को दी गई, तौरात जो कि मूसा को अता की गई, और वो स्क्रॉल्स जो इब्राहिम को दिए गए, खुदा हिफाजत कर सकता था और उसके असल नुस्खे अब भी हमारे साथ मौजूद होते। राइट? खुदा कर सकता था, उसके पास कुदरत है, वो इसकी ताकत रखता है। उसे ऐसा करना नहीं था क्योंकि वही की वो बातें सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए थी, उसी जमाने के लिए थी। उसमें सिर्फ महदूद हद तक रहनुमाई थी, यानी उनमें महदूद शरीयतें थी। वो शरीयत सारे जमाने के सब लोगों पर अप्लाई नहीं हो सकती थी। शरीयत का मतलब रहनुमाई, ठीक है? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक सादा सी मिसाल देता हूँ। आपके पास नॉर्वे का आइन है। नॉर्वे का आइन सिर्फ नॉर्वे के लोगों के लिए ही लिखा गया था, सिर्फ उन 5 मिलियन लोगों के लिए जो जोग्राफियाई तौर पर उनके कल्चर के मुताबिक और उनके बैकग्राउंड के लिहाज से लिखा गया। नॉर्वे का आइन सिर्फ नॉर्वे के लोगों पर अप्लाई होता है, वो अमेरिका के लोगों पर या भारत या फिर अफ्रीका के लोगों पर अप्लाई नहीं होता। इसी तरह अमेरिका का आइन दूसरे मुल्कों पर अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि वो मखसूस पहलू के लिहाज से लिखा गया है। मगर तसव्वुर करें कि अगर कोई ऐसा आइन हो जो पूरी दुनिया पर अप्लाई हो सकता है,
तमाम कल्चर्स, तमाम नस्लों और तमाम जमानों पर। तो कुरान की मिसाल इसी तरह है। अगर दूसरी किताबों का मवाजना करें तो जैसे नॉर्वे और यूएस का आइन अलग अलग है, उसी तरह बाइबल, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट भी मुख्तलिफ है। अगर खुदा इंजील को महफूज कर भी लेता या फिर जीसस को दी हुई वही को महफूज कर लेता, तब भी वो आज के जमाने के लिए काफी नहीं थी, न ही हमें आने वाले तमाम मसाइल के लिए काफी होती। लिहाजा इसका दायरा महदूद था, वो सिर्फ उन लोगों के लिए और उस जमाने के लिए थी। इसी वजह से अल्लाह ने अपनी हिकमत से उसकी जिम्मेदारी या उसकी हिफाजत का वादा नहीं किया, मगर कुरान पूरी इंसानियत के लिए और सारे जमानों के लिए है, हर जमाने के मसले के हल के लिए, हर कल्चर और इंसानियत की हर नस्ल के लिए है। और चूंकि ये आखिरी वही है तो इसलिए अल्लाह ने इसकी हिफाजत का वादा किया है। मुसलमान मानते हैं कि कुरान महफूज है, मगर बाइबल में तब्दीली हो चुकी है, तो इसकी क्या वजह है? क्या आप बता सकते हैं? ये बहुत बड़ा दावा है। ये बहुत बड़ा दावा है और इस दावे का सबूत भी बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए फौरन कुरान की तरफ आते हैं। देखें, अल्लाह ने ये पेशगोई की है कुरान में, चैप्टर 15 वर्स नंबर 9। हकीकत यह है कि ये जिक्र, ये पैगाम हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। लिहाजा इसकी हिफाजत करने के दो तरीक़ाकार हैं। एक, हाफिजे में अपने लोगों के जहनों के अंदर। देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही आई, वो सबसे पहले हाफिज बने पूरे कुरान शरीफ के। आपके साहबा ने कुरान को याद किया और अपने बाद आने वाले लोगों को सिखाया, और होते होते हमने भी यही सीखा। तो कई सिलसिले में ये जहनों में महफूज हो रहा है 1400 साल से बगैर किसी गैप के। हर एक नस्ल में हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने इसे हिफ्ज किया, यानी इसे जुबानी याद किया। और हमारी नस्ल में यानी 2021 में लोग जानकर हैरान रह जाएंगे कि तकरीबन 15 मिलियन हाफिज कुरान इस दुनिया में मौजूद हैं। और बाइबल के कितने हैं? असल जुबान के 0। मैं असल जुबान कह रहा हूँ, राइट? अरामिक जुबान में या फिर कदीम क्लासिकल अबरानी ओल्ड टेस्टामेंट जुबान में। एक जानिब बाइबल का कोई हाफिज नहीं है और दूसरी तरफ 15 मिलियन हाफिज हैं कुरान के। तो हम कह सकते हैं कि ये हिफाजत का एक तरीका है, यानी कुरान को हिफ्ज करना, राइट? और हम इसका तजर्बा भी कर सकते हैं। एक ईसाई आ सकता है जो जानता हो कि कुरान को कैसे पढ़ा जाता है, वो कुरान को खोले, और मेरा बेटा आएगा जो कि हाफिज कुरान है, माशाअल्लाह, राइट? उसका भी हिफ्ज मुकम्मल होने वाला है। तो वो दूसरी जानिब देख रहा होगा, उसके पास ना कोई फोन होगा, ना कोई गैजेट होगा, वो अपने हाफिजे से कुरान पढ़ना शुरू करेगा। और वो ईसाई जो अरबी पढ़ना जानता है, वो कुरान में देख सकता है, उसमें वही लिखा होगा जो कि मेरा बेटा यूसुफ तिलावत करेगा। एक सादा सा एक्सपेरिमेंट, ठीक है? अब दूसरा तरीका कुरान नाजिल होने के बाद से उस वक्त से महफूज है जब नबी पाक को अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना नहीं सिखाया था। जब भी उन पर वही नाजिल होती तो उनके पास 55 से 77 कातिब होते। वो उनके पास आते और उनसे फरमाते कि ये आयत लिखो और ये सूरा लिखो मेरे सामने। कातिब जब लिख लेते, उसके बाद उनसे फरमाते कि जो तुमने लिखा है उसे मुझे पढ़कर सुनाओ, ताकि यकीन हो जाए कि जो कुछ उन्होंने कहा था वही लिखा हुआ है। तो इस तरह पूरा कुरान लिखा गया था और पूरा याद किया गया था। अगर लिखने वाले कोई गलती कर देते, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रिंटिंग प्रेस से पहले लोग अपने हाथों से लिखा करते थे कॉपीज पर, तो उनसे गलतियां हो जाती थीं। अगर कुरान के लिखे हुए नुस्खे में कोई गलती होती तो कुरान को याद करने वाले यानी हुफाज कुरान उस गलती की तस्दीक करने के बाद वो उसका पता लगाते और उसे फौरन ठीक कर लेते। यूं वो नुस्खा भी बिल्कुल असल के मुताबिक हो जाता था। लिहाजा कुरान का एक डबल चेक एंड बैलेंस सिस्टम है जो कि किसी और किताब का नहीं था। लिहाजा ये सबूत है कि कुरान को महफूज रखा गया है और हमारे पास हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से लेकर आज तक कुरान के नुस्खे मौजूद हैं। वैसे इनमें से एक बर्मिंघम कुरान भी है जो उन्हें मिला था बर्मिंघम की एक लाइब्रेरी से। तो इस तरह से हम उन्हें बता सकते हैं कि कुरान को महफूज रखा गया है। ये सिर्फ एक अंधा एतमाद नहीं है, बल्कि इसके पीछे सबूत मौजूद है। और बाइबल के बारे में क्या कहें, लोग इस तरह सोच सकते हैं कि तुम मुसलमान इल्जाम लगाते हो कि बाइबल तब्दील हो गई है। ठीक है, तो फिर सबूत क्या है? किसने इसे तब्दील किया और कब किया? कौन सी तब्दीलियां की गयी? जीसस अलैहिस्सलाम जब तफसील से बता रहे थे रहनुमाई के बारे में, एक खुदा के बारे में, निजात के बारे में, तो उस वक्त उसे कोई नहीं लिख रहा था। कोई बाइबल का तारीखदान ये नहीं कहता कि जीसस के अल्फाज को जीसस के जमाने में लिखा गया था। तो जीसस के दुनिया से जाने के बाद और कई दहाइयां गुजर जाने के बाद लोगों ने उन्हें याद किया और लिखना शुरू कर दिया। तो तकरीबन 30 से 60 साल के दरमियान का वक्फा आया जीसस के जाने और उनके लिखने के दरमियान। और ईसाइयों के मुताबिक जिन लोगों ने इसे लिखा वो 4 गॉस्पल्स जो कि जीसस के जमाने के नहीं थे, वो लोग गुमनाम मुसन्निफीन थे और उन्होंने जिस जुबान में लिखा था वो जुबान भी जीसस की नहीं थी। देखें, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक जीसस अरामाइक जुबान बोलते थे
मगर जो असल तहरीर थी न्यू टेस्टामेंट की वो थी यूनानी जुबान में, जबकि मुसलमानों के लिए कुरान लिखा गया अरबी जुबान में, याद किया गया अरबी में, जाहिर भी अरबी में हुआ। जब हम इसे नमाजों में पढ़ते हैं तो अरबी में पढ़ते हैं, मगर उन्हें ये चीज मैसर नहीं थी। लिहाजा बाइबल न्यू टेस्टामेंट को लिखा गया यूनानी जुबान में, लेकिन जीसस की लैंग्वेज थी अरामाइक, राइट? तो उनके इन तमाम गैप्स को देखें। जीसस के जमाने में नहीं लिखा गया, जब लिखा गया तो किसी और जुबान में। ऐसे लोगों ने लिखा जो उनके शागिर्द नहीं थे या उन्हें देखा नहीं था, और फिर उसमें भी साल दर साल तब्दीलियां होती चली गईं। इसमें बहुत सी तब्दीलियां करने की वजह ये है, जरा तसव्वुर करें, आपके पास एक बाइबल का नुस्खा है, तो फिर किसी शख्स को इसे अपने पास लिखना, उतारना, कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल के कोई हाफिज तो है नहीं। तो ये शख्स कॉपी करते हुए गलती कर सकता है। हो सकता है उसकी याददाश्त कमजोर हो, या हो सकता है वो थका हुआ हो, या फिर रोशनी ना हो। अब जब वो कॉपी करेगा तो वो कॉपी उस असल नुस्खे की तरह नहीं होगी, क्योंकि उसमें एक गलती मौजूद है। अब अगर कोई इस कॉपी से एक और कॉपी बनाता है तो वो गलती तो कॉपी होगी ही, साथ में मजीद गलतियां भी हो सकती हैं। लिहाजा आप जितनी कॉपियां बनाते जाएंगे उतनी ही गलतियां बढ़ती चली जाएंगी। अब एक तरीका है उन्हें ये बताने का कि बाइबल तब्दील हो चुकी है, क्योंकि मैं बाइबल्स की कलेक्शन करता हूँ और मेरे कलेक्शन में 300 बाइबल्स हैं। हाँ, कभी मेरी लाइब्रेरी तशरीफ लाएं, जो कि मुख्तलिफ जमानों में से है, मुख्तलिफ जबानों में और मुख्तलिफ वर्जन्स में है, और उनमें से हर एक दूसरी से मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर, जैसे कि आपके पास बाइबल का किंग जेम्स का वर्जन है, जो कि आया है सन 1611 में, जो कि इंग्लैंड के किंग जेम्स की निगरानी में तैयार और शाया हुआ था। तो उस बाइबल को सन 1881 से 1885 में रिवाइज किया गया, क्योंकि उसमें गलतियां थीं और उसे कदीम नुस्खों से कॉपी नहीं किया गया था। लिहाजा उन्होंने इसे रिवाइज किया सन 1881 में। फिर उसमें भी कुछ गलतियां रह गईं, लिहाजा उन्होंने इसे रिवाइज किया सन 1901 में, जिसे अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन कहते हैं। उसमें भी गलतियां थी, क्योंकि लोगों ने नए नुस्खे दरियाफ्त करना शुरू कर दिए थे, और नए नुस्खे बिल्कुल मुख्तलिफ थे इस बाइबल से, लिहाजा उन्हें अपडेट करते रहना पड़ा। और मैं चंद मिसालें भी दूंगा, ठीक है? अच्छा, बाइबल के 1901 वाले वर्जन यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन में भी गलतियां थी, लिहाजा उन्होंने दोबारा रिवाइज किया सन 1952 में। अच्छा, फिर उसमें भी गलतियां थी, इसे दोबारा रिवाइज किया गया सन 1971 में। NASB, उसमें भी गलतियां थी, दोबारा रिवाइज किया गया सन 1989 में, और फिर 2020 में, और उसके बाद 2021 में भी। अब आप सोच रहे होंगे कि सबील भाई, आखिर ये हो क्या रहा है? बात दरअसल ये है कि ठीक है, उनके पास एक बाइबल है, लेकिन अगर उन्हें नए नुस्खे मिल जाते हैं तो उन्हें इस बाइबल को अपडेट करना पड़ता है, न सिर्फ इसके तर्जुमे को बल्कि इसके मज़ामीन को भी। तो फिर वो कौन सी वर्सेस होंगी जिन्हें लोगों ने बाइबल में तब्दील कर दिया होगा? अगर आप बाइबल के किंग जेम्स वर्जन को देखें, न्यू टेस्टामेंट में यानी दूसरी बुक में, जो कि है गॉस्पेल ऑफ मार्क, चैप्टर नंबर 16 में, मैं बहुत मालूमात दे रहा हूँ, उम्मीद है आप तवज्जो दे रहे होंगे। एक नया टेस्टामेंट यानी दूसरी गॉस्पेल, चैप्टर नंबर 16, उसके अंदर 20 वर्सेस हैं किंग जेम्स वर्जन के अंदर। ये तो एक बाइबल की बात हुई। अब जो बाइबल मेरे पास है, जो कि बाइबल का 1952 का वर्जन है, अब गॉस्पेल ऑफ मार्क के चैप्टर 16 में 20 वर्सेस है, जबकि इस वाली में सिर्फ 8 वर्सेस हैं। वाह! आप जानते हैं कि लोग क्या सोच रहे होंगे कि मुसलमान वर्जन का मतलब तर्जुमा समझ रहे होंगे। नहीं, तर्जुमा तो हमारे समझने के लिए होता है। तर्जुमे का तो मतलब है मसलन इंग्लिश से टर्किश ज़बान में तर्जुमा करना। ठीक, तर्जुमा तो इसे कहते हैं। वर्जन का मतलब है आपने बदल दिया असल अल्फाज को और आपने बदल दिया इसमें लिखी हुई असल बातों को। इस वर्जन में बहुत ज्यादा जुमले हैं और इस वर्जन में बहुत कम जुमले हैं। तो ये एक मिसाल हो गई, ठीक, आसान सी मिसाल। एक और मिसाल लेते हैं कि गॉस्पेल ऑफ जॉन में, जो कि 4th गॉस्पेल है, चैप्टर नंबर 7 में, वर्स नंबर 53, उसमें एक फाहिशा औरत के बारे में बताया गया है कि कैसे लोग उसे संसार करने के लिए उसके गिर्द जमा हुए थे, और जीसस वहाँ आए और उन्होंने कहा कि जो लोग भी गुनाहों से पाक है वो पहला पत्थर फेंके। राइट, आपने भी ये कहानी सुनी होगी। ये कहानी कदीम नुस्खों में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, किंग जेम्स वर्जन में मौजूद है। बाइबल के RSV वर्जन के मुताबिक ये कहानी बाद में शामिल की गई, ये कदीम नुस्खों में मौजूद नहीं है, यानी किसी ने इसे बाद में शामिल कर लिया था। एक छोटी मिसाल और देता हूँ। जॉन के पहले खत में चैप्टर 5 वर्स नंबर 7, किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक के आसमान में 3 गवाही देने वाले हैं, वो बाप और बेटा और रूहुल कुद्स। ये तो किंग जेम्स में लिखा है, जबकि बाइबल के नए वर्जन्स में उन्होंने इसे निकाल दिया, क्योंकि उनका ख्याल था कि किसी ने इसे बाद में शामिल किया। कहने का मकसद है कि गुज़श्ता सदियों के दौरान यूनानी नुस्खों में लोगों ने चीजें शामिल भी की और उन्होंने निकाली भी हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि असल बाइबल चेंज हो चुकी है।
और ईसाइयों के लिए उलझन असल में यही है कि उनके पास ना तो असल बाइबल है और ना ही उनके पास हुफ़ाज़ यानी बाइबल याद करने वाले हैं। उनके पास सिर्फ यही नुस्खे हैं और हर नुस्खा दूसरे से मुख्तलिफ है। लिहाजा वो अपने मुताबिक पूरी कोशिश करते हैं और वोटों की अक्सरियत पर फैसले करते हैं कि कौन सा जुमला यहाँ ना चाहिए, कौन सा जुमला वहाँ ना चाहिए। इस तरह बाइबल को तैयार किया जाता है। तो मुसलमान जब ये बात कहते हैं कि बाइबल तब्दील हो चुकी है और कुरान महफूज है, तो हमारे पास एक पक्का तस्दीक शुदा सबूत मौजूद है। तो क्या सिर्फ यही 4 बाइबल्स हैं जो लिखी गई और जीसस के जमाने में दीगर बाइबल्स भी मौजूद थीं? तो हुआ ये कि जब जीसस को आसमानों पर उठा लिया गया था 33 साल की उम्र में, तो किसी ने भी उनकी तालीमात के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा। उसकी कई दहाइयों के बाद लोगों ने लिखना शुरू किया बहुत सी गॉस्पेल्स। तो गॉस्पेल की तारीफ ये है कि वो बायोग्राफी है जीसस अलैहिस्सलाम की, लिहाजा बहुत से लोगों ने बायोग्राफी लिखी जीसस पैगंबर की। बज़ाहिर सिर्फ मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन ही नहीं बल्कि और भी बहुत सी गॉस्पेल्स लिखी गई थीं। कुछ लोग उनकी तादाद 77, कुछ 100 और कुछ 200 भी बताते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि तमाम असल रूहानी औलादे जीसस की और उनके शागिर्द वो लोग दुनिया के चारों कोनों में गए ताकि तौहीद परस्त अकीदे की तालीम दे सकें जो उन्हें जीसस से मिली। तो ये ईसाई या ये असल शागिर्द जब वो गए रूमी सल्तनत में, जब वो फारस में गए और जब वो मिस्र में गए और जब गए वो बड़े सगीर हिंदुस्तान में और गए चाइना में, तो उन जगहों और उन कल्चर्स में ट्रिनिटी मुख्तलिफ शक्लों और मुख्तलिफ तरीकों में राइज हो चुकी थी। तो लिहाजा बदकिस्मती से क्राइस्ट के तौहीद परस्त फॉलोअर्स ने तौहीद परस्ती को कायम न रखा और उसमें शामिल कर दिया ट्रिनिटी को। तो चुनाचे कुछ हुआ यूं रूमी सल्तनत में, तो वहाँ 2 ग्रुप्स बन गए थे ईसाइयों के, एक ट्रिनिटेरियन क्रिश्चियंस और दूसरे तौहीद परस्त क्रिश्चियंस, और आप उन्हें कह सकते हैं यूनिटेरियन क्रिश्चियंस। ठीक, अब वहाँ ट्रिनिटेरियंस थे और यूनिटेरियंस थे, उनके दरमियान लड़ाई और इख्तलाफात होते रहते थे। तो कॉन्स्टेंटीन जो कि शहंशाह था रोम का, जो कि वैसे काफिर भी था, तो उसने कहा कि उन लोगों में अमन और हम आहंगी होनी चाहिए, चलो इन्हें एक करते हैं। तो उसने सारे ईसाई बिशप्स को बुलाया और एक काउंसिल बनाई जिसे कहते हैं काउंसिल ऑफ नाइसिया। उसमें उन्होंने फैसला किया कि जीसस बराबर है फादर के। जानते हैं इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है? अब ये उनके ईमान का हिस्सा बन चुका है। अच्छा, जब ये सब कुछ हो रहा था तो गॉस्पेल्स वहाँ मौजूद थी बहुत सी अक़साम की। तो ईसाई ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी गलत है और कौन सी सही, मगर ये सब ट्रिनिटी का अकीदा ईमान का हिस्सा बन गया था। फिर उन्हें तय करना पड़ा कि असल बाइबल कौन सी है। वो उन्होंने 367 ईस्वी में किया। देखिए जीसस के जाने के कितने साल बाद, सन 367 में उन्होंने ट्रिनिटेरियन अकीदों को शामिल किया और सिर्फ मुंतखब किया उन गॉस्पेल्स को जो कि ईसाइयों के ट्रिनिटेरियन अकीदे के ऐन मुताबिक थी। साल 367 में, यानी जीसस के जाने के 300 साल के बाद, तो वो गॉस्पेल्स जो मुताबिक थी ट्रिनिटी के, उन्होंने इसे बाइबल में शामिल कर दिया। जो उसके मुताबिक नहीं थी वो उन्होंने फेंक दी। तो और भी बहुत सी गॉस्पेल्स थी, जैसे कि मिसाल के तौर पर गॉस्पेल ऑफ थॉमस, ये लोग नाम लेते हैं गॉस्पेल ऑफ बरनबास और दीगर गॉस्पेल्स का, जो कि ये कहती है कि जीसस एक पैगंबर है, खुदा सिर्फ एक है और जीसस को मौत नहीं आई। ठीक, यानी निजात का वो तस्वुर जो इस्लाम देता है। उन तमाम गॉस्पेल्स को उन्होंने फेंक दिया, ब्लैकलिस्ट कर दिया, उन पर पाबंदी लगा दी गई और सिर्फ उन्हीं गॉस्पेल्स को शामिल किया गया जो ट्रिनिटी के मुताबिक थी। तो फिर ये ट्रिनिटी का अकीदा उन्होंने कहाँ से लिया? क्या वो दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक रखते थे जिनके वो ईसाइयत से पहले मेंबर हुआ करते थे? तो ट्रिनिटी यानी ट्रिनिटी का तस्वुर वाकई में मौजूद था दूसरे कल्चर्स में, मगर ट्रिनिटी ही नहीं सिर्फ, राइट? क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ कल्चर्स ने खुदा का तस्वुर इस हद तक कमजोर कर दिया था कि वो पूजने लगे इंसानों को, जानवरों को, बुतों को, और फिर वही ट्रिनिटेरियन तस्वुर। मसलन हिंदुओं में अब भी ट्रिनिटी का तस्वुर मौजूद है। उनमें ब्रह्मा जो खालिक कायनात है, उसके बाद है विष्णु और फिर उनमें है शिवा जो बचाने और तबाह करने वाला है। तो मिस्र के कल्चर में भी ऐसा ही ट्रिनिटी तस्वुर मौजूद था। रूमी सल्तनत फारस की यानी तौहीद परस्ती को कमजोर कर दिया गया था। यानी मिसाल के तौर पर इंडिया में, अच्छा मेरा ताल्लुक भी वहीं से, मैं वहीं पला बड़ा, वहीं पैदा हुआ। मैं देखा करता था कि कुछ मुसलमान मरने वालों की कब्र पर जाते और वहाँ पर घेरा बना लिया करते थे। मैं समझा कि ये मुसलमान है और उसके बाद वो सजदा किया करते थे उन मरने वालों की कब्र पर, और वो खुद को मुसलमान भी कहते हैं क्योंकि उन्हें इल्म ही नहीं कि वो दीन में नई चीज इजाद कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जब क्राइस्ट के इब्तिदाई फॉलोअर्स इन दीगर कल्चर्स से मिले तो वो माइल होने लगे उनके कल्चर की तरफ, उनके लाइफस्टाइल की तरफ और उनके अकीदे की तरफ। ऐसे उन्होंने तौहीद परस्ती को कमजोर कर दिया और ट्रिनिटेरियन तस्वुरात को शामिल कर लिया। लिहाजा शुरू में माजी के कुछ कल्चर में, यहाँ तक कि यहूदी कल्चर्स में भी
تو وہ نیک لوگوں کو خدا کا بیٹا کہا کرتے تھے. جو پاک ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہوگا. حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ علامتی طور پر کہا کرتے تھے. مگر پھر جب کرائسٹ کے فالوورز منظر عام پر آئے اور انہوں نے کہا کہ دوسرے کلچرز میں ان کے پاس خدا کے بیٹے ہیں، ان کے پاس خدا کے بیٹے ہیں، پتہ ہے انہوں نے کیا سوچا؟ کہ شاید جیزس بھی خدا کے بیٹے ہیں. لہٰذا جو چیز علامتی معنوں میں تھی اس کو انہوں نے حقیقی معنی دے دیے. لہٰذا جب انہوں نے حقیقی معنوں میں سمجھ لیا کہ خدا کا ایک بیٹا ہے تو پھر بیٹے میں خدا کی کچھ خصوصیات بھی ہونا ضروری تھی، یعنی بیٹا بھی خدا ہونا چاہیے. پھر انہوں نے ایک اور ہستی کو شامل کیا جسے روح القدس کہا. دیکھیں، روح خداوندی ایک علامتی انداز ہے. خدا کی روح دراصل خدا ہی ہے، مگر انہوں نے روح خداوندی کو ایک الگ شخص بنا دیا اور اسے خدائی صفات دے دی. تو پتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر فادر خدا ہے تو بیٹے میں بھی خدائی صفات ہیں اور روح القدس میں بھی خدائی صفات موجود ہیں. ہو سکتا ہے ان کلچرز کی طرح خدا کو 3 لوگوں میں بانٹ دیا گیا ہو. تو اس طرح ٹرینیٹی کا تصور کئی صدیاں گزرنے کے بعد، جیسس کے دنیا سے جانے کے بعد، یہ ٹرینیٹی کا لازمی حصہ بن گیا یا عیسائی مذہب کے ایمان کا جز بن گیا. اچھا، تو یہ انتہائی عقلی دلائل ہیں. مگر بہت سے عیسائی کہتے ہیں کہ مجھے عیسائیت میں روحانیت ملتی ہے اور مجھے خدا سے ایک ربط محسوس ہوتا ہے. تو پھر میں کیوں اپنا عقیدہ بدلوں یا بدلنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں 3 وجوہات سے کسی بھی شخص کو اپنا عقیدہ بدل کر عیسائیت سے اسلام میں آ جانا چاہیے. 3 سادہ سی وجوہات فوراً. سب سے پہلی وجہ ہے صرف اس لیے کہ کوئی شخص اگر بہتر یا روحانیت یا اچھا محسوس کرے کسی خاص عقیدے میں، تو یہ اس عقیدے کی سچائی کا معیار بالکل نہیں ہے. ایک ہندو جب مندر جاتا ہے تو وہ بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ میں روحانیت محسوس کرتا ہوں، مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ صحیح عقیدہ ہے. احساسات حقیقت نہیں ہے جیسا لوگ کہتے ہیں. ایک بدھسٹ بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، ایک یہودی بھی یہ بات کہہ سکتا ہے، مسلم بھی یہی بات کہتے ہیں. صرف ہمارے کہنے سے وہ چیز صحیح نہیں ہو جاتی ہے. احساسات رائٹ جو کہ ہم سب میں ہوتے ہیں، لہٰذا اسے اپنی سوچ پر مبنی دلیل کہا جاتا ہے. اپنی سوچ پر مبنی یہ احساسات ہیں. ہم احساسات پر نہیں بلکہ حقائق پر چلتے ہیں. چلے اب حقائق پر بات کرتے ہیں. 2 چیزیں ہیں. نمبر 1، دیکھیں ہمارے لیے صحیح عقیدے کا ایک معیار یہ ہے کہ عقیدے میں خدا کا صحیح تصور ہونا چاہیے. اگر خدا کا تصور صحیح ہے تو ہر چیز مکمل ترتیب میں آ جاتی ہے، اور اگر خدا کا تصور غلط ہے تو باقی سب بے معنی ہو جاتا ہے. لہٰذا خدا کا وہ تصور جو اسلام دیتا ہے کہ وہ ایک اور اکیلا ہے، کائنات بنانے والا ایک ہی ہے، اس کی بے مثال صفات ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی ٹرینیٹی نہیں، بالکل ایک اور اکیلا. خدا کے اسی تصور کی تبلیغ ہر پیغمبر اور ہر رسول نے کی، یہاں تک کہ بائبل میں بھی ہے. میں اپنے عیسائی اور یہودی دوستوں سے کہتا ہوں، اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو وہ توحید پرست تھے، وہ ٹرینیٹیرین نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام ٹرینیٹیرین نہیں تھے، انہوں نے توحید کی تبلیغ کی، اور باقی پیغمبروں نے بھی، یہاں تک کہ جیسس نے بھی توحید کی تعلیم دی. جیسس بھی ٹرینیٹیرین نہیں تھے. تو یہ دوسری وجہ ہے کہ عیسائیوں کو اسلام پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے ہی توحید کو دوبارہ زندہ کیا، جس کی تبلیغ کی تھی جیسس نے اور تمام پیغمبروں نے. اور تیسری اہم وجہ یہ ہے کہ اگر میں ایک سیکولر سوچ رکھتا ہوں، میرے سامنے موجود ہے اسلام، عیسائیت، یہودیت، ہندوازم، اور اب میں کوئی مذہب چننا چاہتا ہوں، تو میرے لیے ایک معیار یہ ہوگا کہ انسانیت بہت زیادہ مسائل سے گزر رہی ہے. ہمیں نسل پرستی کا، فیملی کا نظام ختم ہونے کا، اخلاقی ویلیوز اور نسل کشی، خودکشی، جوا اور مسائل کے ایک نہ ختم ہونے والی فہرست کا سامنا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو صحیح مذہب اور عقیدے کا ایک معیار یہ ہے کہ اگر وہ مذہب خدا کی طرف سے ہے تو وہ پریکٹیکل، قابل عمل اور فائدہ مند حل پیش کرے گا ہر مسئلے کا. لہٰذا اگر آپ دیکھیں نیو ٹیسٹمنٹ کو تو وہ اس پر بات نہیں کرتا ہے کہ وہ مکمل اور جامع حل کون سے ہیں جو کہ معاشی سسٹم کو، پولیٹیکل سسٹم کو، عدالتی سسٹم، فیملی سسٹم اور ازدواجی سسٹم کو حل کرے. نیو ٹیسٹ ہمیں ضرورت ہے اور وہ نیو ٹیسٹمنٹ میں نہیں ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ حد تک موجود ہیں، مگر وہ صرف موجود ہیں یہودیوں کے لیے، اور وہ محدود، وقتی اور مخصوص لوگوں اور مخصوص قوم کے لیے ہیں. ہمیں حل چاہیے مگر وہاں نہیں ملتے. وہ حل ہندو ویداس میں بھی موجود نہیں ہے، بدھسٹ صحیفوں میں بھی نہیں ہے وہ، رائٹ؟ انسانیت یعنی 8 بلین لوگ ان مسائل کا حل چاہتے ہیں، رہنمائی چاہتے ہیں. صرف انسانی عقلی نقطہ نظر سے ان کے پاس حل موجود نہیں ہے، پریکٹیکل حل، رائٹ؟ صرف یہی نہیں کہ پڑوسی سے محبت کرو. محبت سے مراد کیا ہے؟ اس حوالے سے پورا تفصیلی حل ہونا چاہیے. اسلام کے پاس یہ حل موجود ہے، قرآن میں جو کہ انسانیت کے لیے اللہ کا کلام ہے، اور سنت میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے کاموں کی مثال موجود ہے. انسانیت کو ان کی ضرورت ہے اور یہ حل ان کے پاس نہیں ہے، مگر اسلام فراہم کرتا ہے. لہٰذا ان 3 وجوہات سے، عقلی اور شعوری نقطہ نظر سے، اسلام ہی صحیح مذہب ہے.
اچھا، آپ کہتے ہیں کہ پچھلے پیغمبر میرا مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ کے پیغمبروں نے ایک خدا کے تصور اور ایک خدا پر ایمان کی تعلیم دی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ جیزس نے یہی بات کہی. تو عیسائیوں کے مطابق ان پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ جیزس پر ایمان نہیں رکھتے تھے، کیونکہ جیزس ان کے بعد آئے تھے، تو ان پیغمبروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جیسس علیہ السلام سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے پاس نجات کا راستہ کون سا ہے؟ ان کی نجات کا راستہ وہی ہے جو نجات کا راستہ ہونا چاہیے، یعنی کہ صحیح عقیدہ اور اچھے اعمال کرنا، اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو معافی کے لیے خدا سے توبہ کریں گے. یہ واضح بات ہے، کیونکہ وہ لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے، جو موسیٰ علیہ السلام کے اصل فالوورز تھے، ہم انہیں مسلمان کہتے ہیں. وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، لہٰذا عربی میں ہم انہیں جو لفظ دیتے ہیں وہ ہے مسلم. کوئی بھی شخص جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا تھا اور خدا کی دی ہوئی کتاب تورات پر عمل کرتا تھا، عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اللہ سے توبہ کیا کرتا تھا گناہ سے معافی کے لیے، ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. گزرے ہوئے زمانے کے لوگ جو ابراہیم، سلیمان، داؤد، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کی قومیں تھی. اب انتہائی اہم بات، یہاں تک کہ جیزس کے زمانے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ جس نے بھی جیزس کو پیغمبر مانا اور ایک خدا پر ایمان رکھا، خدا کے حکم پر عمل کیا اور انجیل پر عمل کیا جو خدا کی طرف سے آئی، جو جیزس اور ان کے شاگردوں کو دی گئی وہی تھی، تو ہم کہتے ہیں کہ ایسا شخص مسلم ہے. وہ فالوور تھا کرائسٹ کا، اور اس کے لیے نجات کا راستہ ایمان رکھنا خدا پر، جیزس کو پیغمبر ماننا اور عمل کرنا تھا تورات اور انجیل پر. بائبل میں ایک بڑی حیرت انگیز بات لکھی ہے. اچھا، میں اسے حیرت انگیز کیوں کہہ رہا ہوں؟ تو ایک شخص کو مسلمان ہونے کے لیے، مثلاً آپ فرض کریں کہ کوئی شخص مسجد میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں اور مسلمان ہونا چاہتا ہوں، تو پھر اسے پڑھنا ہوگا کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو زمانہ تھا جیزس کا، آپ کا کیا خیال ہے یہی کلمہ ہوتا تھا؟ اس وقت جیزس اللہ کے رسول تھے، رائٹ؟ اس وقت تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور جیزس اللہ کے رسول ہیں. آپ کو یہ بائبل میں مل جائے گا. تو جیزس فرماتے ہیں اگر تم ہمیشہ کی زندگی میں جانا چاہتے ہو، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو، تو انہوں نے خدا کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ جان لو کہ صرف تو ہی سچا خدا ہے اور جیزس کو خدا نے بھیجا ہے پیغمبر بنا کر. واہ، یہ شہادت بائبل میں موجود ہے اور جیزس کہہ رہے ہیں کہ جنت میں جانے کا یہی واحد راستہ ہے کہ علم رکھا جائے، پڑھا جائے شہادت کو. تو کیا نبی پاک اولڈ اور نیو ٹیسٹمنٹ کو کاپی کر کے قرآن نہیں لکھ سکتے تھے؟ اوکے، تو سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ قرآن کو بائبل سے کاپی کیا گیا ہے. بہت سے طریقہ کار ہیں جن کے ذریعے ہم اس الزام کو مسترد یا غلط ثابت کر سکتے ہیں. ایک بات تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کو بائبل سے کاپی نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے نہیں سکھایا تھا لکھنا اور پڑھنا. اگر وہ اسے لکھنا چاہتے تب بھی وہ نہیں پڑھ سکتے تھے بائبل کو کہ اسے کاپی کرتے، پہلی بات. لہٰذا قرآن کے چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 157 میں کہ وہ ایک امی پیغمبر تھے، انہیں پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں تھی. اب دوسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی مکمل بائبل موجود نہیں تھی جس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہو جسے وہ دیکھ کر کاپی کرتے. پہلی بار جب ترجمہ مکمل ہوا اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، وہ تقریباً 900 صدی عیسوی میں مکمل ہوا تھا، جو کہ یہودی عالم نے اس کا نام تھا سادیہ گاؤن. تو نبی پاک کے زمانے میں یعنی 7ویں صدی عیسوی میں اس یہودی بائبل کا عربی میں ترجمہ نہیں ہوا تھا. اور اگر نیو ٹیسٹمنٹ کی بات کریں تو اس کا تو 1600 عیسوی تک ترجمہ نہیں ہوا تھا، لہٰذا عربی میں پوری بائبل موجود ہی نہ تھی جسے دیکھ کر نبی پاک کاپی کرتے، رائٹ؟ کیونکہ اس کا عربی میں ترجمہ ہوا ہی نہیں تھا. تیسری بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے مضامین موجود ہیں بائبل میں جو کہ قرآن میں نہیں ہے اور قرآن کے مضامین بائبل میں نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ مثلاً قرآن کے اندر ایک واقعہ ہے فرعون کے حوالے سے. بائبل میں بھی فرعون کے قصے کا ذکر کیا گیا ہے، مگر قرآن نے پورا واقعہ بیان کیا ہے. مثلاً بائبل میں ایکسڈس کی کتاب چیپٹر نمبر 3 میں بیان ہوا ہے کہ فرعون اور اس کی فوج موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتی ہے اور پھر سمندر میں ڈوب جاتی ہے. قرآن میں بھی یہی قصہ موجود ہے، مگر پھر قرآن کہتا ہے کہ فرعون کے ڈوب جانے کے بعد اس کے جسم کو بعد کے لوگوں کی عبرت کے لیے محفوظ کر دیا جائے گا. تو اب ہم نے دریافت کر لیا فرعون کے جسم کو، اور اٹاپسی کرنے والے لوگوں نے کہا ہے، آپ کو معلوم ہے نا، یہ وہی فرعون ہے جو موسیٰ کے زمانے میں تھا. تو آپ دیکھیں قرآن میں اضافی معلومات موجود ہیں، لہٰذا نبی پاک اگر اسے بائبل سے کاپی کر رہے ہوتے تو پھر انہیں اضافی اور بالکل درست معلومات کس نے دی جنہیں ہمارے زمانے کے اسکالرز نے اب دریافت کیا ہے. نمبر 2، قرآن اب اور کس بارے میں بات کرتا ہے؟ وہ ہے نوح، طوفان نوح کے بارے میں. بائبل بھی طوفان کے بارے میں بتاتا ہے، قرآن بھی طوفان کے بارے میں بتاتا ہے، لیکن بائبل کے مطابق وہ ایک عالمی طوفان تھا. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 21 میں ہے کہ پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، ہر کوئی ہلاک ہو گیا تھا
सिवाय उन लोगों के जो कश्ती में सवार थे। ये चैप्टर 7 वर्स नंबर 21 में लिखा है बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट बुक ऑफ जेनेसिस में। अब कुरान भी तूफान के बारे में बताता है, लेकिन कुरान कहता है कि ये किसी एक मकाम पर आया था, सिर्फ उन लोगों के लिए जो थे मुखालिफ नूह अलैहिस्सलाम के, वो लोग जो उनका और उनकी तालीमात का मजाक उड़ाते थे और अल्लाह से दूर हो गए थे, उन्हें खुदा ने सजा दी थी। ये मकामी तूफान था। अब आपके पास एक बाइबल का किस्सा है और एक कुरान का किस्सा है, और आर्कियोलॉजिस्ट हिमायत करते हैं कुरान के किस्से की। साइंस सही कहती है कुरानी किस्से को, राइट। अब नंबर 3, वो एक्स्ट्रा मालूमात किसने दी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। नंबर 3, हम ये कह सकते हैं कि कुरान में साइंसी हकाइक मौजूद हैं। 500 से ज्यादा साइंसी हकाइक और गलती 0। बाइबल में ये नहीं है, लेकिन कुरान में ये है। लिहाजा वही बात, अगर कुरान को कॉपी किया गया होता बाइबल से, तो फिर किसने वो इजाफी कुरानी हकाइक, साइंसी हकाइक दिए बाइबल में, कुरान में? तो ये भी एक वजह है, राइट। तो एक सादा सी मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि फर्ज करें कि आपके पास 2 स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट मिसाल के तौर पर डेविड D ग्रेड, बिल गेट्स B ग्रेड, ठीक है, राइट। अब फर्ज करें फाइनल एग्जाम में डेविड अगर बराबर में बैठा है बिल के, और वो बिल के तमाम जवाबात को कॉपी कर रहा है, और फिर बिल को मिलता है B ग्रेड 90, फर्ज करें 80%। आपके ख्याल में डेविड को कितने मिलेंगे? वो बिल्कुल वही जवाबात कॉपी कर रहा है, तो B ग्रेड मिलेगा, राइट। क्योंकि डेविड सिर्फ बिल के सही जवाबात ही कॉपी नहीं कर रहा, बल्कि वो सही के साथ गलत जवाबात भी कॉपी कर रहा है। लिहाजा अगर कुरान कॉपी होता बाइबल से, तो फिर कुरान में भी सारी गलतियां कॉपी होती जो कि मौजूद है बाइबल में। बाइबल की सारी गलतियां, तमाम कमी बेशियां बाइबल की, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुरान में 0 गलतियां हैं, जबकि बाइबल में बहुत सारी हैं। तो वो कौन था जिसने सिर्फ और सिर्फ सही चीजें ली, जिसने दुरुस्त चीजों को लिया? साइंस अब इसे साबित करती है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि साइंसी नुक्ता नजर से, आर्कियोलॉजिकल नुक्ता नजर से, रूहानी नुक्ता नजर से और तारीखी नुक्ता नजर से कुरान बजाते खुद नाजिल हुआ था, और इसे बाइबल से कॉपी नहीं किया गया था, राइट। मगर फिर कुछ लोग पता है क्या कह सकते हैं कि बहुत सी बातें एक जैसी हैं कुरान और बाइबल की, इसी वजह से इसे कॉपी शुदा कहा जाता है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, बाइबल को भी उसी हस्ती ने नाजिल किया जिसने कुरान को नाजिल किया, यानी अल्लाह ने। मगर बाइबल तब्दील कर दी गई है, कुछ ही असल बातें उसमें रह गई हैं। उसके बाद अल्लाह ने आखिरी वही भेजी, इसलिए उसमें भी कुछ बातें वही हैं जो बाइबल में मौजूद थी। ऐसा इसलिए नहीं कि एक किताब दूसरी से कॉपी की गई है, बल्कि भेजने वाली जात एक है। चले अब इसे अकली दलील से समझते हैं, राइट। अगर लोग ये कहते हैं कि कुरान को बाइबल से कॉपी किया गया था, तो हम कहेंगे ओके फाइन, न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ बातें एक जैसी हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि अब ईसाई मानते हैं कि जो वो ईसाई मुसन्निफीन ने यहूदी मुसन्निफीन को कॉपी किया था, क्या उन्होंने यहूदी मुसन्निफीन की बातें चोरी की हैं? यहाँ हम क्यों रुक जाते हैं? ओल्ड टेस्टामेंट के कुछ मज़ामीन हिंदू वेदास से मिलते जुलते हैं, तो क्या हम ये कहेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट के मुसन्निफीन ने हिंदुओं को कॉपी किया, उनके कंटेंट को चुराया? हम यहाँ कुछ क्यों नहीं कहते? हिंदू वेदास में बहुत सी बातें मिलती जुलती हैं बेबीलोनियन सहीफों से, मगर हम वहाँ खामोश रहते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि कुरान उस जात के जरिए नाजिल हुआ, यानी कि अल्लाह, और बाइबल में असल बातें रह गई हैं जो उसी जात यानी अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई थी। तो एक ही हस्ती से नाजिल हुई, इसलिए बातें मिलती जुलती हैं, न कि ये वजह है कि एक शख्स ने दूसरे से कॉपी कर लिया। सदियों से यहूदी मसीहा यानी क्राइस्ट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जीसस आए तो उनका इनकार कर दिया। और इस किताब में भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खबर दी गई थी। मगर जब ईसाई नबी पाक का इनकार करते हैं, तो क्या उनका ये अमल यहूदियों जैसा नहीं? हाँ, बिल्कुल कुछ बातें एक जैसी हो सकती हैं कि क्यों ईसाई इनकार करते हैं नबी पाक का, और यहूदियों ने क्यों इनकार किया, न कि सिर्फ जीसस को बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनकार किया। ये जो यहूदी स्कॉलर्स हैं, मखसूस मयार तलाश करते हैं अपने मसीहा में कि मसीहा दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह बादशाह होगा, कि मसीहा एक फौजी लीडर की तरह होगा, मसीहा फौज के साथ हुक्मरानी करेगा, राइट, उसकी वसी सल्तनत होगी। जब उन्होंने जीसस को देखा, एक शख्स जो दिखने में कमजोर था, जिसका लोग मजाक उड़ाते थे, जिसे मानते नहीं थे, ना ही कोई आर्मी थी और ना ही कोई ताकत, तो उनके जहन के मुताबिक जानते हैं वो क्या सोचते हैं? ये मसीहा नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल उनकी बाइबल के मुताबिक मसीहा के लिए इन मयारात का होना जरूरी है। ये बुनियादी वजह थी कि उन्होंने जीसस अलैहिस्सलाम का इनकार किया। अब उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया, यानी कि यहूदियों ने बाज़ औक़ात तो गुरूर और तकब्बुर की वजह से, शायद वो ये सोचते हैं कि तमाम पैगंबर जो आए थे वो सब नस्ल थी इसहाक की, और उनके ख्याल में वो चुने हुए लोग हैं कि वो किताबें उनको दी गईं और पैगंबर उनको दिए गए, वो बेहतरीन लोग हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा प्यारे नबी पाक को,
जो कि तशरीफ लाए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से अरबों में आए, तो बदकिस्मती से उनके गुरूर और तकब्बुर की वजह से उन्होंने उनका इनकार किया। हालांकि वो अपने सहीफों में निशानियां देख चुके थे। कुछ यहूदियों ने इस्लाम भी कबूल किया, मगर मजमूई तौर पर उन्होंने बिल्कुल उसी तरह इनकार किया, उसी तरह जिस तरह जीसस अलैहिस्सलाम का इनकार किया। अब ईसाई नबी पाक का इनकार इसलिए करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक बाइबल एक मुकम्मल किताब है जिसमें हकायक मौजूद हैं, और उनके मुताबिक निजात का रास्ता वाज़ेह है कि जीसस आए, वफात पा गए और किस्सा यहाँ पर खत्म हो गया। कोई नया शख्स नहीं, कोई नया रहनुमा नहीं आएगा जो बाइबल की रहनुमाई में इजाफा करेगा। इसलिए वो कहते हैं कि बाइबल काफी है, हमारे जीसस काफी हैं, और इतनी रहनुमाई काफी है, इसलिए नए रसूल और नए पैगंबर के आने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी वजह से वो इनकार करते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मगर जैसा कि हमने पहले बताया, बहुत से साइंसी हकायक में, ओल्ड टेस्टामेंट में, न्यू टेस्टामेंट में निशानियां मौजूद है कि एक पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाएंगे जो कि होंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर कोई मुखलिस यहूदी या फिर कोई मुखलिस ईसाई इनकी पेशगोइयों पर गौर करे तो उन्हें सारी निशानियां वाज़ेह हो जाएंगी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की, और वो हिदायत जो अल्लाह ने उनके जरिए दी, और वो तौहीद परस्ती जो अल्लाह ने उन्हें अता की। इंशाअल्लाह अगर वो वाकई मुखलिस और सच्चे हों तो वो भी नबी पाक को पैगंबर मान लेंगे और इस्लाम का मजहब अपना लेंगे जो अल्लाह की तरफ से अता किया गया। आखिर में हो सकता है कि कोई ईसाई आपको देख रहा हो और वो कहे, ठीक है, इस्लाम अकल पे पूरा उतरता है, मगर मैं जीसस को नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर मैं मुसलमान हो गया तो जीसस के साथ मेरे ताल्लुक और रिश्ते का क्या होगा? अगर कोई ईसाई ये कहे कि इस्लाम अच्छा है, दिल को भाता है, मगर क्या मुझे जीसस को छोड़ना होगा? मुझे उनसे प्यार है। मैं कहूँगा कि आप जीसस को भी अपने साथ लाएं और उनकी शख्सियत को मुकम्मल करें। तो आपको जीसस को बिल्कुल नहीं छोड़ना, बल्कि अब आप जीसस को बिल्कुल वैसे ही मान रहे होंगे जैसा कि वो थे। वो एक अजीम इंसान और पैगंबर थे। बाइबल में कई मर्तबा ये कहा गया कि वो एक अजीम शान पैगंबर थे, राइट? मैथ्यू 13:57 और जॉन 4:44, मार्क 6:4, लूक 13:33। तो अगर आप जीसस से मोहब्बत करते हैं तो उनकी बातों पर अमल करें। वो एक तौहीद परस्त इंसान थे। आप उनकी शख्सियत को अपने साथ ले आएं और आप ये हकीकत ला सकते हैं कि जीसस एक पैगंबर थे और कुरान भी यही कहता है। और आप लिबास भी पहन सकते हैं जैसा कि जीसस का लिबास था। उनकी दाढ़ी थी, वो बाहया लिबास पहनते थे। आप अपने साथ वो सारी बातें ला सकते हैं जो जीसस अलैहिस्सलाम अपने शागिर्दों से कहा करते थे। मुसलमान भी वही बातें करते हैं, आप अपने साथ ला सकते हैं। आप ये भी अपने साथ ला सकते हैं कि जीसस रोजा रखा करते थे, 40 दिन और 40 रातें, बिल्कुल ऐसे जैसे मुसलमान रोजे रखते हैं। आप वो अपने साथ ला सकते हैं। और बेहतरीन चीज जो आप ला सकते हैं वो है जीसस की इबादत करने का तरीका। वो खुदा के आगे सजदा करते थे और खुदा की इबादत करते थे। वो सिर्फ खुदा के मोहताज थे। आप ये भी साथ ला सकते हैं, और क्योंकि मुसलमान भी यही सब करते हैं, तो आप जीसस को खोएंगे नहीं, अपने साथ रखेंगे, बल्कि उनकी शख्सियत में कुछ और बेहतर, कुछ ऐसा जो खालिक की तरफ से दिया गया है। जीसस अलैहिस्सलाम ने कभी शराब नहीं पी, कभी सूअर नहीं खाया, और ना ही उन्होंने कभी भी खून इस्तेमाल किया, क्योंकि वो मजहब के सच्चे पैरोकार थे। मैं क्या कह सकता हूँ कि वो एक मुसलमान, एक पैगंबर थे जो कि अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करते थे। वो अहकामात जो कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिए। लिहाजा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है वो सूअर नहीं खाते थे, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट की बुक लेविटिकस थी। वो खून इस्तेमाल नहीं करते थे, और भी अहकामात वहाँ मौजूद हैं। और जीसस ने अल्लाह के रसूल की हैसियत से क्या कहा? उन्होंने कहा कि नई टेस्टामेंट जो कि सबसे पहली गॉस्पेल थी, द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17, और उसके बाद से लिखा है कि ना ही शरीयत को मनसूख करने आया हूँ, ना ही नबियों को, बल्कि उसे पूरा करने आया हूँ। और जो कोई ओल्ड टेस्टामेंट के कानून से किसी एक हिस्से को भी निकालेगा वो आसमानी बादशाही में सबसे कम दर्जे का शुमार होगा। और जो इन कवानीन को कायम रखेगा वो बुलंद तरीन दर्जे पर होगा। और इन कवानीन में से एक ये भी है कि सूअर का गोश्त ना खाओ, खून का इस्तेमाल ना करो। और यही वो कवानीन है जिन्हें हम शरीयत कहते हैं, यानी हलाल कवानीन। तो अगर आपको जीसस पसंद है फिर आप ये चीजें छोड़ देंगे, क्योंकि मुसलमानों ने भी इन्हें छोड़ दिया है। अगर आप जीसस से मोहब्बत करते हैं तो फॉलो करें उनके दीन को भी। जीसस का दीन भी इस्लाम था, और हम आपको खुशामदीद कहते हैं दीन इस्लाम में, जो कि आपको और तमाम इंसानियत को दिया गया है। इसी में ही निजात है और इसी में आपका फायदा भी है। जज़ाकल्लाहु खैरन। आपके जवाबात का बहुत शुक्रिया। इस्लाम में खवातीन का दर्जा, शरीयत और जिहाद वगैरह ऐसे बेशुमार सवालात हमारे पास हैं जो ईसाई इस्लाम के बारे में पूछते हैं। ये तमाम सवालात हम आपसे दूसरी वीडियो में पूछेंगे। देखते हैं कि डॉक्टर सबील अहमद उनके जवाबात दे पाते हैं कि नहीं। तो अगली वीडियो के मुंतज़िर रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।